Good afternoon, all of you. Today we are going to learn about the relation between potential and the electric field. Okay. For example, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है. हमारे पास यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है having different electric potential. For example, if this surface is having V, then electric field is something like this is given, and when the electric field will be from left to right, when there is positive charge present on the left side and negative charge present on the right side, then only electric field could be from left to right. Now electric field is given, and if the electric potential for this equipotential surface A is V, then this surface will have a little bit higher electric potential. Why? Because it is closer to the positive charge. It is closer to the positive charge. So this surface could have, let's assume that V plus del V, a little bit larger than the surface number A. Okay. So this is basic ideology. There are two equipotential surfaces which are present in an electric field E, and both the surfaces have potential as the V and the V plus del V. V and del V plus del V. Now let us assume that there is a charge 1 coulomb unit charge is present on this surface, and we are going to move it from A to B, and B point is present on the surface number B. Or now the point A is having 1 unit microcoulomb 1 coulomb of unit charge, and we are moving this charge from A to point B on the surface A and surface B. And what will be the work done in moving a charge from A to B? From the definition of work done, we can say that potential difference is defined as work done per unit charge. Work done per unit charge. So by the relation, we can say that work done could be written as charge into potential difference. Charge into potential difference. तो यहां पे अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. फाइनल पोटेंशियल कितना है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल V plus del V minus initial potential, that is equal to V get cancel out, so the remaining is del V. Here the del V is the potential difference. So putting the value of potential difference in the equation number 1, we could get that work done could be written as, यहाँ पे हमारा work done हो जाएगा potential difference del V into charge Q, और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 माइक्रोकूलम यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? फ्रॉम मूविंग A to B, that is equal to del V. Is it clear to everyone? This is equation number 2. This is equation number 2. देखिए एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन electric field E and potential V for equipotential surfaces. तो उसके लिए हमने क्या लिया? दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ली जो कि प्रेजेंट है हमारी एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट. इट मींस कि यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्जेस है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्जेस है. तो यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है जिनका इंडिविजुअल पोटेंशियल है V एंड V प्लस डेल V. यहाँ पे हमने B वाली प्लेट पे, B वाली सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू a little bit larger or little bit greater लिए. Why? Because it is more closer to the पॉजिटिव चार्ज. तो जब हमारी सरफेस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास होगी तो डेफिनेटली वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फार सरफेस. तो यहाँ पे हमारी सरफेस नंबर बी पे जो है पोटेंशियल वो है V प्लस डेल V, और सरफेस नंबर ए पे जो तो पोटेंशियल है वो है V. तो उसके बाद हमने देखा कि हमें निकालना क्या है? वर्क डन. तो वर्क डन क्या होगा हमारा? वर्क डन इज डिफाइंड एज Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस.
पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज q। पोटेंशियल डिफरेंस की यही डेफिनेशन होती है ना, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है हमारा, फ्रॉम ए टू बी, चार्ज को हम ए से बी पे मूव कर रहे हैं, और चार्ज पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज के कारण जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन की डेफिनेशन से आ जाएगा हमारा W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा माइनस इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा। फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है, V प्लस डेल V, इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, V प्लस डेल V माइनस V, दैट इज इक्वल टू डेल V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे डेल V की इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास W इज इक्वल टू आ जाएगा डेल V इंटू Q, and as we know that Q is taken here as a unit charge, so the work done is equal to del V. For the unit charge work done is equal to del V. Clear है, ठीक है, चलिए। Now the second definition of the work done says that the W is equal to FD cos theta, force into displacement having cos theta. And we also know that this is the equation number 3, and also we know that E is equal to F by Q. So F is equal to Q into E. Putting the value of F is equal to QE in equation number 3, we are going to get W is equal to QE D cos theta, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए D का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखिए हम A से B पे जा रहे हैं, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस से सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जा रहे हैं। सो लेट अस अज्यूम कि इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी डेल एल। मान लिया दोनों के बीच में डेल एल डिस्टेंस है, डेल एल डिस्टेंस पे दोनों सेपरेटेड है। और हाँ एक चीज और कि ये दोनों सेपरेट जो है डेल एल है उसकी वैल्यू काफी छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तभी यहाँ पे हमने डेल वी लिया। ये एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये जो सरफेसेस है ये ज्यादा पास पास है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डेल एल। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, जब हम ए से बी पे जाएंगे डेल एल होगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू डेल एल, we are going to get W is equal to QE del L cos theta. Now we know the value of Q is 1 coulomb, 1 coulomb, W is equal to 1 coulomb. Second electric field E is given as E, del L is given as del L, displacement is given in del L. Now we are going to find out the value theta and the cos theta. तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है लेफ्ट टू राइट। ऑन द अदर हैंड हमारा जो चार्ज है वो मूव कर रहा है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स और ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट। हमारा चार्ज जो है वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, चार्ज मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, एंगल 180 डिग्री। भाई यहाँ पे cos थीटा जो है, अब बताइए cos थीटा के अंदर एंगल 180 क्यों ले रहा है हम, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए cos थीटा जो है यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है वो थीटा किन किन के बीच में कंसीडर करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल होगा हमारा थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेफ्ट टू राइट और चार्ज जो है वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1। वैल्यू पुट करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू cos 180, तो W इज इक्वल टू E del L -1, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E del W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -E डॉट del L हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो W की हमारे पास एक वैल्यू तो आई है, ये वो इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5।
तो W की एक इक्वेशन से वैल्यू आई थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू आई थी वर्क डन की डेल V, एंड इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू आई है माइनस E डेल L। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 with 5 we are going to get that W is equal to del V is equal to minus E del L, so E is equal to minus del V upon del L. So this is the relation between electric field and the electric potential. This is the relation between electric field and the electric potential. E is equal to minus del V upon del L for the unit charge. So what we have done that there are two equipotential surfaces present in the electric field E, and we are going to move charge from first surface to the another surface, and the displacement between both the surfaces is equal to del L, and the value of charge is a unit charge, 1 coulomb of charge, and we observed by the derivation that the electric field will be equal to minus del V upon del L. Here minus sign suggests that the direction of the motion of the charge will be opposite to the direction of the electric field. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? So this is what all about the relation between the electric field and the electric potential. Okay, so our next topic is potential energy in an electric field for a charge. Potential energy in an electric field. Potential energy in an electric field. देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 जो कि सेपरेटेड है R डिस्टेंस है. इफ यू हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? वो होती है हमारी U is equal to K Q1 Q2 upon R. K is the dielectric constant that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस R एंड मल्टीप्लाइंग बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये होती है एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जिसमें दो चार्जेस Q1 एंड Q2 प्रेजेंट है. ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम सिस्टम को चेंज करें थोड़ा सा, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो अप्लाइड नहीं था, यहां पे कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो अप्लाइड नहीं था. दो चार्जेस थे किसी सिस्टम में, तो उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होती है Q1 Q2 अपॉन R. ये अब तक हमने पढ़ लिया है. लेकिन व्हाट नेक्स्ट, क्या अपग्रेड कर रहे हैं हम अपग्रेड क्या कर रहे हैं इस सेक्शन में? हम ये अपग्रेड कर रहे हैं कि मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल है V1, यहां पे पोटेंशियल है V2, एक चार्ज है Q, इस चार्ज को V1 से V2 पे लाया जा रहा है, इस चार्ज को V1 से V2 पे लाया जा रहा है. नाउ what will be the difference or what will be the potential energy stored or what will be the change in potential energy for the system? What will be the change in the potential energy of the system? कैसे निकालेंगे? देखिए, as you know, potential energy is defined as the U is equal to K Q1 Q2 upon R. This one is the first equation for the potential energy. And secondly, we also know that the electric potential is defined as potential energy stored per unit charge. Electric potential is defined as electric potential energy stored per unit charge. Okay, तो यहां से हम इस डेफिनेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा. कैसे? यहां से हमारे पास आता है U इज इक्वल टू Q इंटू V. तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना होगा. फॉर एग्जांपल
ये हो गया हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारी, U1 इज इक्वल टू V1 इंटू क्यू या Q इंटू V1 होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी हमारे पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी Q इज द चार्ज, V2 इज द वोल्टेज, Q इंटू V2, U2 इज इक्वल टू Q इंटू V2 होगी, यही होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए ठीक है, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है हमारी U2, इनिशियल कितनी है U1, तो ये क्या हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q V2 माइनस Q V1। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q, कॉमन आ जाएगा V2 माइनस V1। तो क्या हम V2 माइनस V1 को डेल V लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q इंटू डेल V। दिस इज द इक्वेशन फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी when we move a charge from first potential point to another potential point। एक बार फिर से रिवाइज करते, देखते हैं हमने क्या समझा है, क्या पढ़ा है अभी। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की कितनी होगी। उससे पहले हमने कुछ रिवाइज किया कि जो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी सिस्टम में दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 जो कि R डिस्टेंस पे एक दूसरे से सेपरेटेड है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हमारा के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। फिर हमने इसमें अपग्रेड किया, हमने ये किया कि भाई एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल हमारा V1 है, दूसरा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल हमारा V2 है, चार्ज हमारा सिंगल है, उस चार्ज को हम V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल पे मूव कर रहे हैं। सो वी आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम V1 टू V2, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो टू फाइंड the change in potential energy, what we are going to do, we are going to use the definition of the electric potential, and from the definition of the electric potential it says that electric potential is equal to electric potential energy stored per unit charge. So V is equal to U by Q. By the help of this equation we can find out the potential energy at a particular point, that will be equal to the value of charge multiplied by the electric potential at that point. So the potential energy at first point will be equal to Q into V1, and the potential energy at the final point will be equal to Q into V2. Now the change in potential energy can be defined as final position minus initial position, potential energy at the final position minus potential energy at the initial point. So what will be the difference of potential energy in the given system, that will be equal to final potential energy minus initial potential energy, that is equal to del U is equal to Q V2 minus Q V1. Q is getting common and V2 minus V1 can be written as del V. So the potential energy difference del U is written as the Q into del V. That is the equation, or that is the relation for a charge when we move from one potential point to the another potential point. Del U is equal to Q del V. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? चलिए इसी के अंदर हम एक और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, एक और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर दो चार्जेस थे, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी। सेकंड वाले के अंदर सेम चार्ज था, डिफरेंट पोजीशंस थी। थर्ड वाले के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और डिफरेंट चार्ज की वैल्यू होगी। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन। इट सेज दैट इफ देयर इज अ पॉइंट A where the electric potential is V1 and charge is Q1 placed, and there is another point that is B, here the electric potential is V2 and charge Q2 is placed. At point A there is V1 potential and Q1 charge is placed, and point B V2 is potential and Q2 is electric charge present on that point. Now the question is, what will be the total potential energy of this system? What will be the total electric potential energy of this system?
So by the definition we can say at V1 at a point A, due to V1 electric potential and Q1 charge, the value of potential energy at point A could be written as Q1 into V1, and at point B the potential energy could be written as Q2 into V2. Q2 into V2. Now, is there any kind of potential energy will be present? Yeah, definitely there will be a different kind of potential energy will also introduce, that is due to the different potential and different charges. There must be a relatable electric potential energy between both the charges due to the difference of the magnitude of the charge as well as the difference of the electric potential. So when we are going to find out the total electric potential energy, we also have to introduce a common electric potential energy. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम कैसे निकालेंगे. टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुड बी रिटन एज ड्यू टू यूए प्लस ड्यू टू यूबी प्लस यू कॉमन. अब मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो यहां पे u इज इक्वल टू ua इज इक्वल टू q1 v1 प्लस q2 v2 प्लस u कॉमन कितनी होगी, जब दो चार्जेस हमारे r डिस्टेंस पे q1 q2 प्लेस्ड होते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. So the total electric potential energy of the system could be written as u is equal to due to at point A, due to point B, and also a common electric potential energy. So this is the expression for the system which is given above in the question, that if there are 2 points A and B and both are having a different electric potential, that is V1 and V2, and both are having a different charge Q1 and Q2, then what will be the total electric field, total electric potential energy for the system, and the distance between both the charges is equal to R. By the help of this expression we can solve this kind of questions. In our next lecture we are going to see a few examples based on this type of configuration. Thank you very much.